graphical solutions. So these are the various things that we can think about calculus. It is all about calculation, it is all about functions, it is all about graphical solutions, right? So सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपका मैथ्स में ये टॉपिक के अलावा कौन सा टॉपिक शुरू है? Which topic is going on in your maths? What is the beauty of this calculus? Calculus is basically, this is definition. Basically, what is the application of calculus? Application, it is hugely applied in engineering, technology, of course pure science, physics, right? And basically these are the three things, and etc. I can write there are so many other parameters that are involved. Basically engineering, technology, physics are where we find the application, right? So this is application of calculus, and basically the father of calculus on paper is Newton's, right? So Newton is known as the father of calculus. But India, having a background of Vedas and Upanishads almost thousands and thousands of years back, right? Indeed, it is 10,000 years, more than 10,000 years, more than 5,000 years, we can say. So this has already been developed by Indian, those yogis and rishumunis and those experts, mathematicians, vidwan, what we say, scholars. But on paper जो दिखता है वही फाइनल होता है. तो ऑन पेपर न्यूटन सर को फादर ऑफ कैलकुलस बोला गया. यू मस्ट अप्रिशिएट बिकॉज ही टुक वेरी ग्रेट एफर्ट इन ब्रिंगिंग डाउन दिस ऑन पेपर एंड प्रेजेंटिंग इट टू द वर्ल्ड. सो अभी आप लोग को बेसिकली कैलकुलस बेसिकली 11th का बेस आता है इसमें, और 12th पूरा एक पेपर आ जाता है, एक कंप्लीट पेपर आ जाता है. So this is very important from the point of view of exam. So from the exam point of view, this is almost whole paper, एक पूरा पेपर हो जाता है इसमें, एक पेपर या पार्ट आ जाता है, and it is helping in your that is whole paper. तो स्कोरिंग बहुत स्कोरेबल है ना, स्कोरेबल है. और ये फिजिक्स के खास करके न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस में बहुत काम आता है ना. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट व्हाट वी से कैलकुलस एज अ बेस. सो अभी मैथ्स में क्या टॉपिक शुरू है आप लोग का? कैन यू प्लीज टेल मी? What's the topic which is going on in maths apart from this? I am waiting to see. Meanwhile, you write this, है ना. मुझे चाहिए कि आप लोग अब से लिखना शुरू करो ऑफिशियल एक एक चीज़. टेक योर पेन एंड पेपर and start writing all this thing, because you have the tendency to forget, all of you, all of us rather. So let us remember it by jotting it down on piece of paper. Make sure आप इसको लिखते हो बराबर.
Calculus basically starts with the topic called functions. You know, what are the various topics in calculus? The topics in calculus are like this. The first ever topic is basically functions. It starts with functions. Second is what we say is limits and continuity. This is second topic. What is third topic? Limits and continuity के अलावा. Third is differentiability and derivatives, है ना, या डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है. फोर्थ जो आता है वो आता है आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. फिफ्थ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना. सिक्स्थ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन. सिक्स्थ जो आता है वो आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन. ये सब आप लोग को एक बेसिक आइडिया आना चाहिए. सेवेंथ टॉपिक आता है एप्लीकेशन ऑफ डीआई, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना. और एट्थ आता है डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे सभी चीज, है ना. वी एब्रिवेट दी. दिस आर दी 8 odd topics that come. प्लीज मेक श्योर आप इसको लिखते हो, है ना. These are the syllabus of the whole. That's why it is a complete paper, a part in itself in maths. एक पूरा बुक इस पे लिखा जाता है. फोर्थ टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. एओडी शॉर्टकट है, आप उसको फुल फॉर्म लिख सकते हैं. ए फॉर एप्लीकेशन, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डेरिवेटिव. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. अच्छा, इसको थोड़ा बड़े में लिख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, है ना. देखो टॉपिक्स क्या क्या है उसको इस बार अभी डिटेल में देखेंगे. व्हाट आर द टॉपिक्स? टॉपिक्स आर, पहला है फंक्शंस. तो फंक्शंस में बेसिकली आप लोग क्या देखते हो? इट इज ऑल अबाउट एफेक्ट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. फिर दूसरा क्या है? लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी. इसमें क्या देखते हो? इसमें बेसिकली आप लोग, ये आप लोग को दिख रहा है ना लिमिट्स. हाँ, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में आप लोग क्या देखते हो? ऐसा लिमिट आता है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये फॉर्मेट आता है आपका लिमिट का, है ना. फिर तीसरा फिर से दिखा रहा हूं, शियाबिलिटी. डिफरेंशियबिलिटी का मतलब कॉमन सेंस से बता देते हैं, एबिलिटी टू फाइंड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, है ना, या डेरिवेटिव्स एंड डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन. ये बेसिकली क्या फॉर्मेट है इसका? dy बाई डी एक्स या dn y बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. फिर तीसरा जो आता है वो आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स?
वही आप लोग का इसमें कैलकुलेशन होता है, इसमें आप लोग बहुत कुछ निकालते हो, मैक्सिमा, मिनिमा एंड ईटीसी, बहुत सारा कुछ निकलता है उसमें। खैर एक एग्जांपल दिया मैक्सिमा मिनिमा निकालने। ये है आपका फोर्थ टॉपिक, आई एम सॉरी दिस इज फोर्थ। व्हाट इज द फिफ्थ वन? इट इज नोन एज indefinite इंटीग्रेशन। indefinite क्यों बोला जाता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, मतलब इसमें इंटीग्रेशन तो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लेकिन इसमें लिमिट्स नहीं होंगे, और अगर लिमिट्स डाल दिए तो डेफिनेट हो जाएगा। सो व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन? Definite integration would be integration a to b f x dx। तो इसमें ना कोई वैल्यू आता है, मतलब ये फिक्स रहता है a to b, और इसमें इनडेफिनेट कहीं से भी कहीं तक ले सकते है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, ऐसा एक कर्व होता है, इसके नीचे का एरिया निकालते हैं, है ना। तो इसको एरिया अंडर कर्व भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? AUC, एरिया अंडर कर्व। और ये कर्व कौन है? ये fx होता है। और लास्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हो? सो ये सारे हमारे वो टॉपिक्स हैं। लिख लो, अभी और डिटेल में दे दिया मैंने बाजू में। मेरे मोबाइल के हिसाब से तो सभी कुछ दिख रहा था, लेकिन वो छोटा हो गया, इसलिए मैंने बाजू में बड़े में लिखा है। तो अभी मैथ्स में कौन सा टॉपिक चालू है अभी तक? आप लोग बाकी तो क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरा सवाल सुनाई नहीं आ रहा है क्या? जवाब नहीं देना चाहते हो? दोनों में से एक, दोनों। मैं पूछ रहा हूं अभी कौन सा टॉपिक और हो गया है? मतलब मेरे टॉपिक को छोड़ के अभी कौन सा टॉपिक शुरू है आपके मैथ्स में? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ये, हद से ज्यादा। तो हम लोग कैलकुलस शुरू कर सकते हैं, इसका मतलब है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ही इजी टॉपिक है। वेल एक बात तो पक्की हो गई कि कैलकुलस पढ़ाया जा सकता है ना। कैलकुलस पढ़ाया जा सकता है, और कैलकुलस में जैसे कि हम जानते हैं कि फंक्शन एक 11 का बेस पार्ट होता है, 12 का हायर पार्ट होता है। तो हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। मतलब टॉप फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो पूरा फंक्शंस पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पूरा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। So this is all about the basic things. So I am erasing this part, right? So what is calculus? It is all about calculation. It is all about functions. It is all about graphical solutions. This is calculus from my perspective. Maybe the definition is calculus is that branch of mathematics which deals with blah blah blah, that is various aspect of functions है basically definition. So वो हम लोग इतना टिपिकल डेफिनेशन नहीं देके
हम उसको एकदम क्रिस्प डेफिनेशन दे दिए. इट इज ऑल अबाउट अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन और इट इज ऑल अबाउट व्हाट वी से functions. It is all about graphical solutions. This is what is calculus. So अभी कैलकुलस में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग को टॉपिक फंक्शंस पढ़ना चाहिए ऑर्डर में, और वो पढ़ेंगे भी हम लोग. तो फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस. इसका बहुत अच्छा लेवल होता है फंक्शंस. तो फंक्शंस में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग बेसिकली वो देख लेते. फंक्शंस में हम उसका बेसिक एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर डेफिनेशन के बाद है ना डोमेन व्हाट इज फंक्शन, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे है ना, और उसका डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिर तीसरा हम लोग फंक्शन के ऊपर जो पढ़ते हैं वो है ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस. ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं दो फंक्शन के बीच में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. सो ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस. फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑफ कोर्स ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस. ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं. फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग, पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शंस, उसके टाइम पीरियड्स कैसे निकालना. ये होता है 1 2 3 4 5वां टॉपिक, पीरियोडिक फंक्शन है ना. फिर आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जैसे फॉग, गॉफ, ऐसा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ये आता है. फिर और क्या आता है, बेसिकली ये कंटेंट आप लोग के इसमें है. ऑफ कोर्स फंक्शंस फॉलोड बाय इट्स टाइप्स ऑफ फंक्शंस तो होंगे ये, बट ऑब्वियस है ना. So these are the various topics to be covered under functions. This carries a huge importance in the entire 12th boards. It carries great value in JEE main and advance, right, and advance, and it also carries great importance in all India level any entrance exams, whether you are from NDA. Quite often it has been found IPM में पूछा जाता है ना, NDA, IPM, and there are so many ISC वाला जो एग्जाम है, so there is an IISc, SER वाला, so there are so many exams that take into care this thing, functions, right. So please take a note of this. दिख रहा है कि और बड़ा लिखूं, बताओ. मेरे हिसाब से तो आप लोग को सभी दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे. चलो, विजिबल है, अच्छी बात. तो कैलकुलस एक बहुत ही सुंदर टॉपिक माना जाएगा, बिकॉज बोर्ड्स में स्कोरिंग है. मतलब इसको बोर्ड्स के हिसाब से अगर कवरेज देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40% आप इससे मार्क्स कमा सकते हो. कैन यू बिलीव, ऑलमोस्ट 40%. 19-20 हो सकता, कम ज़्यादा हो सकता है. तो 40% बोर्ड्स का कवरेज है. इसमें भी ऑलमोस्ट 20 to 25% एक कवरेज है ना. और ओवरऑल वो 30 भी जा सकता है कभी कभी.
और ऑल इंडिया लेवल में भी है। सो बोर्ड्स में 40% है, कैन यू बिलीव? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कैलकुलस का पूरा बात कर रहा हूं मैं, दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलस। सो फंक्शंस हम लोग एक पहले रिकैपिचुलेशन लेंगे ये सारे टॉपिक्स का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? सो सबसे पहले एक एक स्टेप बहुत सिंपल, पहले हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा, अभी एक रिकैप, मतलब एक उसको हम लोग कैप्सूल बना लेंगे, एक छोटा सा पिल, जिससे खाने से अपने को पूरा पुरानी चीज़ याद आना चाहिए। इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ मैंने। इसके अभी एप्लीकेशंस का स्कोप बहुत है, जो कि अभी 12th में लेंगे अपन। एक तरीके से हम लोग कौन सा क्लास में आ गए अभी, हमारा बेसिकली 12th स्टार्टेड, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अवर 12th क्लास है ना, 12th मैथ है ना, इट कैन बी मैथ और मैथ्स स्टार्टेड, राइट? और 12th मैथ्स एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ, राइट? सो डेफिनेशन, पहला जो डेफिनेशन है उसको एकदम क्लियरली सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा करके दो गोले रहेंगे और फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन रहेगा एफ, है ना? और हम लोग ज़्यादातर जो फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। रियल वैल्यूड का मतलब होता है ये भी आर, ये भी आर, तो फंक्शन ये भी आर ले सकते हैं, ये भी आर, है ना? बट जनरली हम लोग इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं। सो एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और रियल फंक्शन को कैसा बोलेंगे? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, ऐसा। तो इसमें ना स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, एग्जाम्पल में दे चुका हूं कि इसमें एक भी छूटता नहीं है, किसमें? ए में। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन? एवरी एलिमेंट ऑफ व्हाट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, है ना? सो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब यहाँ पे ए का एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा और बी का यूनिक एलिमेंट से जुड़ा है। सो डेफिनेशन यहाँ पे आता है, जो कि मैंने डिटेल में बताया। तो इसमें डोमेन रेंज किसको बोलते हैं, है ना? सो ये जो होता है ये पूरा x होता है, ये पूरा क्या होता है? y। तो हमारा सेकेंड पार्ट, एक्चुअली सेकेंड पार्ट के बाद ये थर्ड आता है। डोमेन क्या हो गया? सारे x जो y इक्वल टू एफ एक्स से जुड़े हैं। y कौन है? ये। तो ये क्या होता है? देखो ऐसा होता है, ये x ऐसा करके याद कर सकते हो। ये x f के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है? fx, और fx क्या बन जाता है? y। तो फंक्शंस का मतलब क्या होता है? f फॉर फंक्शन, f फॉर फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला बन के निकलता है। अच्छा, फिर रेंज क्या होगा? रेंज होगा ये वो सारे y है सच दैट वो फंक्शन से निकल रहे हैं। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन पूरे के ऑल वाइज, मतलब कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये जितने भी रेड पॉइंट्स है, 1 2 3 4, ये सारे रेड पॉइंट्स जो है वो कोडोमेन के हैं, है ना? और ये जो मैं टिक कर रहा हूं 1 2 3 4, ये जितने भी टिक पॉइंट्स है वो कौन है? रेंज है। और जितने भी ये इधर साइड जो डॉट पॉइंट्स है, ऐसे करके डॉट, वो क्या कर रहे हैं? डोमेन है, राइट? सो बेसिकली डोमेन को एक स्ट्रक्चर से दिखाया मैंने। एग्जाम्पल तो हम लोग ले चुके हैं पहले, आप लोग देख सकते हो, है ना, रिकॉर्डेड वीडियोज से। तो दिस इज सेकेंड डोमेन एंड रेंज। फिर थर्ड क्या आता है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस? एक बार रिकैप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसा आता है। पहला फंक्शन बड़ा सिंपल है ना, ऐसे दो गोले बनते हैं, एक का एक, एक का एक, एक का एक, एक का एक, कुछ छूट गया तो इसको बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन, है ना, 1 to 1 फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होता था? एक का एक, एक का एक, दो का एक दिख जाता था, तो इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, इसको बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। ये भी एक फंक्शन। फिर कैसा होता था? अब तक सब में छूटा कुछ ना कुछ, लेकिन इसमें क्या होता था, है ना,
इसमें एक भी छूटता नहीं था, देखो एक भी नहीं छूटा, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे तो भी छूटे हैं, ये इधर छूटा, इधर छूटा, मान के चलो इधर छूटा। तो इसमें ये वाला फंक्शन है, लेकिन इसको बोला जाता है ऑन टू फंक्शन, जिसकी खास बात है जितने डॉट है उतने ही पॉइंट्स पूरे कवर होते हैं। मतलब यहाँ की खास बात क्या होगी, कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में जो होता है और एक बाकी है उसको यहाँ पे देख लेंगे, इसका ऑपोजिट कर देंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे, एक एक्स्ट्रा का यहाँ पे डाल देंगे, तो ऑन यहाँ पे इनटू हो जाएगा। इनटू मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज हो जाएगा, ये है ना। और लास्ट ये भी फंक्शन है, लास्ट फंक्शन का नाम क्या होता है, ऐसे करके ऐसे, जिसमें एक का एक होता है और एक भी छूटता नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कौन कौन सा, ये 1 1 वाला कंडीशन भी और 1 2 वाला भी। इसका मतलब ऐसे फंक्शन की खास बात है, ये आगे से भी ले सकते हो तुम इसको, फंक्शन को पीछे से भी ले सकते हो। आगे को लेने को क्या बोलते हैं, नॉर्मल फंक्शन a to b। पीछे से जो फंक्शन को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, f इनवर्स, वो कहाँ से आ जाएगा, b to a। तो आगे से लिए तो x का y निकला और पीछे से लिए तो y का x निकला। तो y आगे से जब लेंगे फंक्शन फ्रॉम a to b कैसा दिखेगा, y इक्वल टू कैसा दिखेगा, fx, और पीछे से लिए f इनवर्स b to a तो कैसा दिखेगा, x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। सो बेसिकली ये कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि ये f इधर से इधर जाने से वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। सो दिस फंक्शन इज नोन एज, ये 1 1 भी है, एक का एक है और एक भी छूटा नहीं, मतलब ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। सो 1 1 को क्या बोला जाता है, इंजेक्शन, और ऑन टू को क्या बोला जाता है, सर्जेक्शन। तो दोनों मिला के हैं, इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन, तो इसको क्या बोला जाता है, बाइजेक्शन। सही है। सो ये सारे केसेस है, पहले एक का एक, इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, एक का एक को, जिसको इंजेक्शन बोलते। फिर यहाँ पे देखो 2 का 1 हो गया, तो 2 का 1 फंक्शन तो रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, मैनी वन फंक्शन, जस्ट इसका विपरीत, ऑपोजिट। फिर क्या होगा, यहाँ पे भी 2 का 1 है, ये ऑन टू के साथ मैनी वन भी है, लेकिन एक नई चीज है इसलिए उसको अपन डिफाइन करते हैं। वो नई चीज क्या है, जितने डॉट से सब कवर हो गए, है ना, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, इसको बोलते हैं सर्जेक्शन। मान के चलो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कुछ छूट गया, डॉट कवर भी हुए और छूटा भी है, मतलब कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। और जहां पे आप एक का एक मतलब इंजेक्शन है और एक भी छूटा नहीं, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, तो उसमें आप आगे भी जा सकते हो पीछे भी, फंक्शन है ना, आगे पीछे, रिवर्सिबल प्रोसेस, इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल फंक्शन को क्या बोला जा सकता है, बाइजेक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन, और इन्वर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्टेंस में होगा। fx है तो f इनवर्स भी होगा। दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस दैट वी आर सपोज टू डील। फिजिक्स में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है फंक्शंस का। बेसिकली जो कैलकुलस में स्ट्रांग होता है उसका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं आपको कोई तो भी एक अमित सर के परमिशन से एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें मैक्सिमम चैप्टर्स में कैलकुलस का इस्तेमाल है, ऐसा देखा जाए, है ना, और जब बेसिकली मैथ्स का इस्तेमाल है, ऐसा बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। तो खास करके कैलकुलस का इस्तेमाल जिस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा है ना, डेरिवेशन, वो मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कितना, ऐसे गॉस थ्योरम है ना, वेव्स है, लाइट, वेव मोशन है ना, लाइट है, तो मॉडर्न फिजिक्स है, ऐसे काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना हद से ज़्यादा अपने लिए चिल्लर हो जाता है फिजिक्स एक्चुअली, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है और उसमें से भी कैलकुलस स्ट्रांग। तो दिस आर दी वेरियस टाइप्स। आप लोग को दिख रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? देखिए जरा आपको कैसा दिख रहा है, वैसे दिख तो रहा है,
ओके, दैट्स ऑल। तो हम लोग कल मेरा क्लास नहीं होगा। आई एम नॉट इन टाउन, आई एम गोइंग आउट ऑफ टाउन, है ना। तो परसों अपना क्लास होगा। परसों जब क्लास होगा तो कल आप पूरा ये टॉपिक रिवीजन करके आ जाओ, जो मेरे प्रीवियस नोट्स है या प्रीवियस वीडियोस है। और इसके बाद हम लोग फंक्शंस को हायर लेवल से पढ़ेंगे। और परसों जब आओगे तो आपके पास 12th का कैलकुलस वाला बुक पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें से भी मेरे को इतना याद नहीं है अभी भी, शायद पार्ट बी का है शायद वो, है ना। कैलकुलस वाला पेपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें से आर डी शर्मा का, है ना, आर डी शर्मा, क्योंकि मैं उसमें से क्वेश्चंस लेने वाला हूं। तो आप इसकी ये चीज का आप नोट कर लो, है ना। और इसको आप एकदम जहन में उतार लो कि आप लोग के पास आर डी शर्मा होना ही चाहिए, बिकॉज दैट विल बी द बेसिक बुक विच विल हेल्प अस क्रैक बोर्ड्स विथ फ्लाइंग कलर्स and prepare us for JEE main and advanced and all other Indian entrance examinations, right? So with this I am signing off. Thank you so much. I hope the start of calculus is bit okay with you. We are going to enjoy this calculus like anything later with our genuine and in-depth input. Thank you.